जो है उसको म्यूट पे है, अनम्यूट कर दीजिए। और हम लोग ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर टीचिंग लर्निंग पर्पस। आपकी अभी आवाज नहीं आ रही कमलेश जी। आपका कमलेश जी जो अपना माइक्रोफोन ऑन करो, माइक्रोफोन पे कर्सर ले जाओ और एक क्लिक कर लो। नहीं, आप देखो स्क्रीन पे नीचे आ रहा होगा माइक्रोफोन का एक आइकन, रेड के अंदर माइक्रोफोन। हाँ, नाउ Okay, ma'am. Now it's okay. Yes. Okay, yes, ma'am. So I am Kamlesh, and right now I am in Noida. Before now also I am teaching only from here only online. I teach in Haryana. What subject do you teach? So I am music teacher only. Okay. Mostly I teach English only, but I am so interested in music. And then I have done some 1 or 2 month course in harmonium for the degree purpose and for learning most things in music. No, I admitted my name here. Okay. Jyotsna ji, unmute. from where did you came to know about this program? Anything else you want to know? Yeah, Kamlesh ji, I'm asking. Yeah. Ma'am, before 6 months or in January pattern, I took admission in BA from IGNU only. So one of my friend only told that there is music degree also you can get from there. So I was going on searching on that. So I got then that before it was late. So in July session there was. So I waited for 2-3 months. Then I took admission here in July session. Okay, very nice. And we would also like to know from all of you your time, convenient time for us to conduct these kind of counseling sessions. So you can even text in the chat box your convenient time to conduct the counseling sessions. All of you can Whenever text. we conduct the meeting, we ask. अच्छा, एक बात बताइए कि हिंदी में आप कंफर्टेबल है कि इंग्लिश में? दोनों में। हम लोग जब भी मीटिंग रखते हैं आपकी सुविधा के लिए रखना चाहते हैं, तो कौन सा समय आपके लिए सूट करेगा? अगर ये आप हमें बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक एक करके आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, तो हम उसमें से जो मेजॉरिटी होगा उस हिसाब से हम लोग अपना क्लास शेड्यूल कर सकते हैं। हाँ, वीकेंड तो सभी है, वीकेंड तो होगा ही, सैटरडे संडे को ही होना पड़ेगा। और इसके अलावा मतलब एक थोड़ा टाइम जैसे फोरनून और आफ्टरनून, नहीं इवनिंग तो नहीं, फोरनून और आफ्टरनून। अच्छा, देवजीत जी हिंदी चाहते हैं, मतलब कि आप वीकेंड में सैटरडे संडे में किसी भी समय आप कर सकते हैं, या मॉर्निंग में कर लीजिए या आफ्टरनून में कर लीजिए। जैसे ये वाला वक्त अगर है तो ये भी एक अच्छा वक्त है। हाँ, 10 से 1 के बीच, और फिर 2:30 बजे से आप 5-5:30 बजे तक का समय है आपके पास आफ्टरनून में। तो वो फिर हम लोग बाद में उसको और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट इफ यू कैन जस्ट टेल मोटा कि आपको आफ्टरनून चाहिए या मॉर्निंग चाहिए। दयानंद जी, कमलेश जी आप म्यूट कर सकते हैं। दयानंद जी प्लीज बोलें। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। I am Dayanand. My age is 59. I am working in Gramina Bank, that is RRB, Regional Rural Bank, as a chief manager. Since last 30 years, I was following the music, especially Hindustani classical music. Forums, it was fascinated. And since last 2 years, I am practicing on guitar after seeing the concert of Vishwamohan Bhatt. I was so inspired.
So in Raichur, that is North Karnataka, there is a lot of Hindustani classical musicians, and they made me to go for some basic. Some I learned some ragas like Malkons, Jog, and other thoughts also I could able to follow. And some ragas I already learned, Shiv Ranjani, and so I am practicing on guitar. So this is what I learned. Thank you, madam. So, sir, basically, singing is your passion. Yeah, it is a passion. This course for your passion. It is only for the fashion. And Okay. after my retirement, I am taking very seriously Okay. Hindustani classical. In depth, I want to go. Very nice. IGNO, I am familiar with it. So in 1913, I completed a MA English IGNO. So Okay. MBA completed net SLET. Oh, You inspire us, sir. yes. You inspire us. Yeah. Very true. It's great words. Great words for me. So I am humble student. I will be learning till my end. Yeah, all of us will be learning from each other. All of us are Yeah. students and lifelong learners. But Yeah. certainly, you have certainly motivated us. Yeah, No especially doubt. youngsters. Nowadays, youngsters, they are very, very shrewd and their performance is excellent and it is a very inspiring, especially youngsters. Now they are replacing all old generation. It's excellent. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir. Uh, Thank you. Hi, ma'am. I'm back. Yes, Can you- anyone else Ma'am, can you hear me? who's speaking right now? Sahitya. Yeah. So I have turned on my video. Am I visible? Actually, something has happened to my video. Okay, I shall remove this. Can you hear me now, ma'am? Yeah, I can hear. Okay, am I visible? Yes. Okay. Hello, everybody. Hello, ma'am. Hello, Josna, ma'am. I'm so glad to have be part of this group. And it's very nice to know that everybody is having different passions and meanings for learning, whatever it is, whether it is Hindustani or Carnatic or whatever it is. Everybody is inspiring, and it's lovely to know all of you. Well, my name is Sahitya. And I've been learning since my childhood. I've been learning classical music since my childhood, and fortunately, I got to perform very few stage performances for Carnatic classical music, and I am also teaching Carnatic music for the medium level and basic level for children online, and I have some passion and affinity towards Hindustani because the style and the way the techniques make us a proficient singer. Really, it makes us a complete person. I believe Hindustani classical has given me that recognition. No offense to any other style, but this is one thing. And the most important thing is my music teachers have inspired me on this. So I have learned Hindustani in bits and pieces. So my reason why I'm part of this program is I have never understood the organized structure due to the break of my learning process in Hindustani style. So I believe it is very important to understand the theory and how different it is from other style. And it's not just about a difference; it's also about. I'm sorry if I'm taking a lot of time from all of you. It's just that I want to express. It has its unique pattern that can touch people's emotions. So this is one thing. So I wanted to learn as much as I can. So I'm very thankful. I came to know about IGNOU just through internet and some of them. I wanted to pursue PhD in another. My profession, I'm a nutritionist,
But then I got in, I saw these certificate programs. I thought, okay, it's gonna be worth it if I pursue at, especially during this COVID. I think it is a brilliant idea. So this is how I came to IGNOU, and I'm comfortable in Hindi, but I cannot speak as fluently as you all speak. But I can understand Hindi. But specifically, if I need anything, I can always ask you separately. So I go with the entire audience, whichever language they are comfortable. I'm okay. But if I need anything, I'll definitely prompt. I can't hear you, ma'am. मैडम अनम्यूट कर लीजिए. मैडम अनम्यूट. The thing is, one thing is that our SLMs are in English only. Okay, so for SLM learning materials, you don't have to get any problem from that because it is written in English. But I prefer, whenever I speak to my students, I prefer to speak in Hindi, because the Hindi speaking people then otherwise don't have any support, because their SLM is also in English. That is why they get they don't understand the Right. Yeah, so sometimes I better switch on to Hindi and speak to them with Hindi in Hindi. And later we can again come back to English. And one thing I should inform everybody, though our SLM is in English, you can answer your questions both in both the languages, Hindi or English. Yeah. Okay. But Sahitya, I find that for you, this course is really rudimentary. It is you have studied so much of Carnatic music. The basic things in Carnatic and Hindustani music is almost same. So yeah, theoretically it is different. Theoretically it is different, because one rag we call something else and you call something else. Then there Vadi Samvadi something else is something else. So these things are there. But otherwise, regarding the forms, etc., because it is only 6 months course, and 6 months course ke andar we get only 3 months to do all the academic work. So uske andar it is not possible to teach you all tanas or detailed rag system, etc. So we will just introduce you 5 ragas in which you will learn all the compositions like Chota Khyal, Sargam Geet, Lakshan Geet, etc. So, this can happen only in 3 months and not more than that. No, since you are an advanced person, you can talk to me separately, and if you want tanas, etc., you can take that. Yeah, I would love to do that, ma'am. I'll do that. Yeah. I'll let you. Thanks a lot for explaining this. Yes, Devojit Kutum, you are coming from Assam. Please unmute yourself. अनम्यूट कर लीजिए. आपका माइक्रोफोन जो है स्क्रीन में देखिए रेड कलर में आ रहा है. नो, आई कांट हियर यू. आपका जो स्क्रीन है ना, उस स्क्रीन में देखिए, ये स्क्रीन है, स्क्रीन में देखिए कहाँ पर माइक्रोफोन है. उस माइक्रोफोन का एक आइकन होगा, माइक्रोफोन का एक सिंबल होगा, उस सिंबल को क्लिक कीजिए. देवजीत जी, जहां ये वीडियो आ रहा है ना, जहां ये वीडियो आ रहा है, देवजीत जी ध्यान से सुनिएगा, जहां वीडियो आ रहा है ना, उस स्क्रीन को क्लिक ऐसे अपने हाथ से क्लिक करिए तो आपको ये आइकॉन दिखेगा एक माइक का. हाँ हाँ, गुड जी. हाँ गुड, अब बोलिए. हाँ, मैं आसाम से बात कर रहा हूँ. हाँ जी, मैंने ग्रेजुएट किया है 2019 में, और मैंने अभी बीएड का पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैंने 2019 में टेट भी क्वालिफाई किया है, और ये मेरा फर्स्ट म्यूजिकल क्लास है.
कोर्स है। मैं सीखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड आर्ट के बारे में। तो आप कहाँ हैं अभी? आसाम से बोल रहे हैं या कहीं और से? आसाम से बात कर रहा हूँ, आसाम का जो विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो आपको इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, मैं तो चारियाली में रहता हूँ मैं, लेकिन मेरा जो परमानेंट विलेज है वो खरयाती में है। मैं घर रहता हूँ और नहीं, रहता हूँ। अभी मैंने हाँ जी। हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही देवोजीत। बस मैं यही कहना चाहती हूँ देवोजीत दैट व्हेनेवर हम लोग क्लास जब लेंगे सैटरडे संडे को, तो आप सैटरडे संडे में या जो भी क्लास का टाइम है उस वक्त आप किसी ऐसे जगह पे आ सकेंगे ना जहाँ पर आप क्लास ले सकते हैं। हाँ जी, मैं जी सकूंगी। जी। और आपने पोर्टल देखा? हाँ जी, देखा। पोर्टल देखा तो हाँ आपके वहां पर से आप डाउनलोड कर पा रहे हैं ना सब चीजें? हाँ, डाउनलोड कर रहा हूँ अभी। जो असाइनमेंट का जो चीज़ें जो मैंने डाउनलोड कर लिया है अभी। जी, हाँ जी। असाइनमेंट है और या लर्निंग मटेरियल जो वीडियोस है, लर्निंग मटेरियल जो डला हुआ है वो आपको मिल पा रहा है ना? देयर इज नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मैम, आई एम ओके गेटिंग ऑल दिस थिंग। थैंक यू। थैंक यू मैम। Anyone else who would like to put on your video and speak to us so that we get to know you? Ashka, Sachin Kumar, Sharmila, Hello. Aditi. Yes, Ashka. Yeah. Hello, ma'am. Hi, everyone. Hello. Are you able to see me? No. I think your rear camera is high now. Now it is Yeah, okay. yeah. Sorry. Yeah. Hi, everyone. Hello. My name is Ashka Patel, and I'm from Ahmedabad, Gujarat. And by profession, I'm an engineer, instrumentation engineer. I worked at Infosys for almost 2 years, and I got to know about IGNOU from one of my friend, and I was just going through the certificate programs and all, and that's how I got to know about this Hindustani classical music program. And I was always eager to learn Hindustani classical music, but I didn't get a chance before. So music has always been my passion, and so I thought of taking this program. And I hope I don't know much about Hindustani classical music, but I'm very eager to learn. I just know the basics, but I'm really very eager to know learn about classical music. Yeah, Sure. thank you. And Sharmila. Sharmila, you have been interacting with me so much, but you are not. Why are you not talking? हेलो मैम। जी सचिन जी बोलिए। आई एम फ्रॉम दिल्ली, माय नेम is सचिन कुमार। यस मैम, मेरा फर्स्ट कोर्स है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हाँ। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और मैंने आपका पोर्टल भी देखा, उसमें आपकी वीडियोस थी। बहुत अच्छी तरह से आपने उसमें बताया है, आलाप तान और बंदिशें वगैरह, राग्स कितने हैं क्या, तो उसके बारे में आपने अच्छी तरह से समझाया है। उसमें
मतलब 3 ताल के बारे में आपने समझाया है, 16 मात्राएं होती हैं, तो उसमें मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, जो कि समझ में भी आया है। ठीक है, आप लोग करते रहिए, तो हम लोग क्लास करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सीखेंगे। आपने इतने अच्छे से आपने बताया सारी, कि आपने बहुत मन से सुना होगा, ये मुझे लग रहा है। और मैम आपने इसके बारे में जैसे कि मतलब धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तीन तीन ता दिन दिन दा धा, इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से बताया आपने, उंगलियों पे कर करके। जी हाँ। और मैम अभी मैंने प्रारंभिक का कोर्स क्लियर किया हुआ है, दिल्ली से ही गांधर्व महाविद्यालय, हारमोनियम से मैं सीख रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी मैम। और अब मैं फर्स्ट ईयर में आया हूँ, इसमें भी तो आप तो हमें दोनों बातें बता सकते हैं कि गंधर्व और यहाँ के कोर्स में कैसा कंपैरेटिवली कैसा लग रहा है? अब मैम अब इक्वली में मैं लेना चाहूंगा कि अब दोनों ही अच्छे कोर्स हैं मैम। जी, गंधर्व हाँ जी। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत पुराना कोर्स चल रहा है। जी जी मैम। आपको थोड़ी बहुत हमारे यहाँ जो है और सहूलियत मिल जाएगी चीजों को समझने के लिए। और मैम बस मैं इसी वजह से कंफ्यूज हो रहा था कि असाइनमेंट में क्या बनाना है, किस तरीके से करना है, और मतलब क्या चीज करनी होगी इसमें अब हमें आगे। ठीक है, हम बताएंगे आपको। आज हम आपको पोर्टल की सारी बातें बताना चाह रहे थे, और ज्योत्सना मैम भी कुछ बताना चाह रही हैं। तो ज्योत्सना मैम को मैं अभी बोलूं क्या कि आप बात करें, ज्योत्सना मैम? जी मैम। जी मैम, सबसे पहले तो सचिन जी, आपने तो कमाल ही कर दिया बिल्कुल। आपने पोर्टल का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन कर लिया, और हम लोग का जो पर्पस है बेसिकली, आपने तो हमसे बिना बताए पहले ही आपने उस पर्पस को सॉल्व भी कर दिया, और हमें इस बात की बहुत खुशी है। सॉरी मैम। मैम जैसे ही मैंने मैम का वीडियोस देखी, तो उसमें जैसे कि नेक्स्ट पर नेक्स्ट, नेक्स्ट पर नेक्स्ट कितनी वीडियोस थी, और मतलब मैम ने किस तरह से बताया हुआ है हर एक वीडियो के अंदर, और हर एक वीडियो के अंदर अलग अलग चीजें बताई हुई है मैम ने। और ये पहले तो मैम ने बंदी से वगैरह अलापन की किस स्थान में कैसे करना है, और फिर बंदी से फिर मतलब बहुत अच्छी तरह से समझाया है मैम ने। मैंने एक एक वीडियो मैम की बहुत अच्छी तरह से देखी है, और पूरी वीडियोस देखी है। हाँ, वो तो हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि मैम जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हम तो ऐसे डायरेक्ट उनके स्टूडेंट नहीं बन पाए आप लोग की तरह, लेकिन जितना इंटरेक्शन हुआ है तो हम भी मैडम के पढ़ाने के बिल्कुल कायल हैं। जी और कभी अगर लाइफ में मौका मिला तो म्यूजिक सीखेंगे मैडम से। पर जो है ये हम अभी जो आपसे बात करेंगे वो एक वेब इनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट पोर्टल करके हमने आप सबके लिए बनाया है। उसका पर्पस ये है कि जैसे हम आपको पता है कि आपका ये कोई फेस टू फेस प्रोग्राम पूरे टाइम नहीं है कि यू आर मीटिंग द टीचर ऑल द टाइम। सो व्हाट वी थॉट इज कि हम एक जगह पे आपको सारी चीजें दे दें, लाइक योर SLM इज देयर, योर असाइनमेंट इज देयर, अगर कुछ क्वेश्चन पेपर्स पुराने साल के डालने हैं तो दे शुड बी देयर। और जो मैडम की जैसे अभी एक सेशन हो चुका है तो वो जो रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी हैं, बिकॉज इसमें क्या होगा कि जैसे आपको पता है कि अभी 15 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर एडमिशंस, तो अभी और स्टूडेंट्स आने हैं, तो हम लोग अभी आपके वेब काउंसलिंग सेशन फॉर्मली फॉर दिस सेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन कंटेंट विच इज ऑलरेडी अवेलेबल देयर, इफ ऑल ऑफ यू गो थ्रू द कंटेंट इन एडवांस, तो जब आप मैडम के वेब काउंसलिंग सेशंस लेना शुरू करेंगे, सो आई थिंक आप ज्यादा बेनिफिटेड हो जाएंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी गॉन थ्रू सर्टेन थिंग्स, यू गॉन टू द मटेरियल, और वीडियो तो बहुत ही इफेक्टिव है इनफैक्ट मैडम के, SLM भी इफेक्टिव है, तो आपको एक सब स्टूडेंट्स को एक एडेड एडवांटेज इससे मिलता है। सो दैट इज वाई वी थॉट कि आप सबके लिए हमें किस तरह से एक जगह पे एक पोर्टल बना के दे जहाँ पे आप एंटर करो and you're confident that no, everything regarding this program I will get it here. मुझे कहीं नेट पे सर्च नहीं करना है, मुझे इग्नो के साइट में और कहीं जा जाके नहीं देखना है कि भाई अब लास्ट डेट असाइनमेंट ही क्या है, मेरा असाइनमेंट कहाँ पड़ा है, मेरी कोई क्या रिसोर्स है, कहीं मैं भैया
अब SLM कहाँ पड़ा है, मैं जाऊँ ढूंढ देखूं और फिर वहां से डाउनलोड करूं, तो सब आप लोगों को एक जगह पे दे दिया गया। तो बेसिक कंसेप्ट इस पोर्टल का ये है। अब मैं आपको थोड़ा सा बस 5 मिनट में इस पोर्टल को डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ। जिन लोगों ने तो अच्छे से देखा हुआ है उन्होंने तो देख ही लिया है, लेकिन जिन लोगों ने देख नहीं पाए हैं या अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, तो उससे क्या होगा कि किसी की दिक्कत होगी तो हम यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो मैडम ने आपको ऑलरेडी लिंक भेजा हुआ है। इन केस अगर आपसे वो लिंक मिसप्लेस हो जाता है या कुछ है तो ये www.igno.ac.in की साइट तो सबको पता है ना। तो इसमें आप नीचे की तरफ इधर ये वेब इनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट ही दिख रहा है, सबको दिख रहा है यहाँ पे, ये जहाँ पे मेरा माउस है अभी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे इस पोर्टल पे। ठीक, अब इस पे देयर इज दिस ये लॉगिन बटन सबको दिख रहा है यहाँ पे, लॉगिन। जब आप इस लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो इधर पे इसका लिंक है यहाँ पे। अब इसमें आप सबको ये ध्यान रखना है कि जो जीमेल की आईडी आपने हमारे साथ रजिस्टर की हुई है, अगर आप उससे ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो सीधे आपको आपके पेज पे जो है उसके होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। ये आपका पूरा कोर्स का पोर्टल है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका पहुंचने का हुआ, और अगर वो लिंक आपने सेव करके रखी है तो उसको आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी आप पहुंच सकते हैं। अच्छा, किस किस ने वाकई में ये पोर्टल देखा हुआ है वो टेक्स्ट में यस करके बता सकते हैं या हैंड्स अप कर लीजिए। हाँ, जो दिख रहा है वो वैसे बता दें। अच्छा, सचिन जी ने देखा है, ओके। आकाश जी ने देखा है, अर्शिता जी ने देखा है, ओके ओके, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उनकी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस और बाकियों के लिए भी अगर कोई यदा कदा कुछ मिस हो गया होगा तो एक बार हम इसको रिवीजन बस करवा देते हैं। तो जैसे ये जो अबाउट बटन है, इसमें आपको आपके प्रोग्राम से रिलेटेड जो बेसिक जानकारियां आपको पता होनी चाहिए वो सारी यहाँ दी हुई हैं। जैसे आप अगर इसमें प्रोग्राम डिटेल में क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा एम, ऑब्जेक्टिव, टारगेट ऑडियंस क्या, ये सारा आपको यहाँ देगा। आप इवैल्यूएशन में क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रोग्राम का इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, थ्योरी कोर्स का क्या है, प्रैक्टिकल कोर्स का क्या है, यू विल गेट द बेसिक नॉलेज फ्रॉम हियर। उसके बाद सेल्फ लर्निंग मटेरियल आते हैं। सेल्फ लर्निंग मटेरियल आप ऐसा समझिए, आप लोग ने तो देखा होगा और पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा कि उसमें एक तरीके से टीचर इनबिल्ट ही होता है। मतलब वो इसीलिए उसको सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं कि वो इस तरह से है कि आपको सारी चीजें रेडीमेड, रेडी हैंड, रेडी रेफरेंस वहीं पे ही मिल जाती है। और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि पूरे टाइम बार बार क्लिक करके जाके पढ़ना हो, आप अपने मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो व्यास का पोर्टल है आपके प्रोग्राम का, ये आपके मोबाइल, टैब्स और कंप्यूटर, लैपटॉप सब पे एक्सेसिबल और उसी हिसाब से रिसाइजिंग हो जाती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसमें आराम से डाउनलोड करके मटेरियल को अपने मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं। अब आप जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यूनिट का एक स्ट्रक्चर आपको पहले यहाँ दे दिया जाता है, जिसमें अबाउट आपको एक इन नटशेल समझ में आ जाएगा, अच्छा इस यूनिट में मुझे ये पढ़ना होगा। फिर उसका इंट्रोडक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि अल्टीमेटली इस यूनिट को पढ़ने के बाद ये चीजें हैं जो आपको क्लियर होंगी। फिर इस तरीके से इसको यहाँ पे जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लैंग्वेज में लिखा गया है, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है कि आप इसको सारी चीजों को बड़े आराम से पढ़ समझ सकें। फिर कंप्लीटनेस के लिए एक समरी है, फिर सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। और ये जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सी वंस यू गो थ्रू द यूनिट, यू रीड द यूनिट एंड इफ यू आर एबल टू डू दीज क्वेश्चंस, तो उससे क्या होता है कि आंसर भी दिए हैं और सजेस्टिव आंसर्स भी दिए हैं, तो you become a bit more confident कि नहीं ठीक है, if I am able to do this, which means that okay, I have actually understood. Because देखिए, as far as I understand regarding all of you, you have come here because this is your passion. This might be your hobby or your passion and you actually want to learn. You have not come for the sake of कि एक सर्टिफिकेट मिल जाए या डिग्री मिल जाए, नहीं, आपका पर्पस तो इंटरेस्ट है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको बहुत फैसिलिटेट करेंगी। तो ये आप आराम से अपने पूरे प्रोग्राम का डाउनलोड करके
और जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि टेलीग्राम आप पोर्टल से ही एक्सेस करें। तो ऐसे ही आपके सारे कोर्सेज का यहाँ पे SLM पड़ा हुआ है। साथ में फिर ये लर्निंग रिसोर्सेज हैं। अब जैसे देखिए हमारा क्या होता है कि SLM बनने का एक टाइम होता है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम बाद ही वो रिवाइज होता है, या कई बार आता है कि कोई लेटेस्ट चीज अगर आ गई है या कुछ अच्छा रिसोर्स है जो जैसे बनर्जी मैडम को लगता है कि नहीं, स्टूडेंट्स को अगर हम ये भी बताएं जो मटेरियल में मे बी डायरेक्टली कवर्ड नहीं है, बट दिस इज समथिंग लेटेस्ट और दिस इज समथिंग न्यू और गुड फॉर माय स्टूडेंट्स, तो वो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने डाल के रखा है। आप इनको भी क्लिक करके आराम से ये सारे यूट्यूब के वीडियो हैं, तो आप वहां जाके इनको देख सुन सकते हैं। और जैसे ये जो NCERT के इस तरह के जो पॉडकास्ट बने हुए हैं, ये काफी बेहतर हैं और इनसे भी आपको एडिशनल नॉलेज के लिए है ये। अगर आपको लग रहा है कि यस यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर, तो सर्टेनली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से वेब रिसोर्स फर्दर रीडिंग है। फिर अब ये वेब काउंसलिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ इस वेब काउंसलिंग में जो है वो जो भी हमारे पास के लेक्चर्स हुए हैं उनके यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। अब आप लोग बिफोर योर एक्चुअल सेशन स्टार्ट्स, व्हेन द एक्चुअल वेब काउंसलिंग स्टार्ट्स, इफ you go through these video, so at least you will come to know about the basics. एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप ये भी हो सकता है कि मैडम से जो है सेशन में अकॉर्डिंगली वो आपको फर्दर ट्रेन कर सकती है, फर्दर बता सकती है। अच्छा, ये तो आपके बेसिकली जो लर्निंग वाला पार्ट था वो हुआ। उसके बाद असाइनमेंट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से आपको इस सेक्शन में आपके असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। असाइनमेंट्स के साथ सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, कहाँ मेल करना है, क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ अवेलेबल हैं। आप आराम से इनको डाउनलोड करके और इनको, चूंकि अब आपके पास मटेरियल भी है, मैडम के इतने बढ़िया लेक्चर्स भी हैं, सो यू कैन वेरी इजीली एंड कंफर्टेबली स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम। देन एक्टिविटीज एंड क्विजेस का एक सेक्शन है यहाँ पे। इसको इसके क्रेडिट्स नहीं है, लेकिन हाँ इसका ये है कि आपकी ही सेटिस्फैक्शन के लिए कि ओके अच्छा इस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ने के बाद कि आप वाकई चीजें कर पा रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ साथ में मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। वहाँ मैंने एक्टिविटीज एंड क्विज में इस बार मैंने जो असाइनमेंट वहां पर PDF दिया हुआ है उसी का गूगल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, सो दैट इफ एनीबडी वांट्स टू डायरेक्टली do the assignment on Google form, they can do it from here. And there in the assignment page I have given the PDF file. अब उसके बाद फिर असाइनमेंट चेंज होते रहते हैं, मतलब क्विजेस चेंज होते रहते हैं इसमें। हाँ, तो इसको ये कर सकते हैं कि असाइनमेंट वाले फॉर्म हम वहीं ले जाएंगे कि जिनको ये फॉर्म असाइनमेंट को एज अ फॉर्म भरना है वो वहीं पे अपना भर के दे देंगे। हाँ, और यहाँ पे फिर हम इनके हिसाब से क्विजेस ऐड कर देंगे। अब अभी तो सेशन शुरू नहीं हुआ है, जैसे शुरू होगा तो फिर क्विजेस है। आफ्टर एवरी वेब काउंसलिंग सेशन यू कैन हैव क्विजेस फ्रॉम हियर। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ डेडिकेटेड TV channel Gyan Darshan, and we also conduct interactive radio counselings, and through Gyandhara is an internet radio counseling platform जहाँ से आप ये दोनों चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें पर्पस ये है कि सिर्फ मैम इज कंडक्टिंग सम काइंड ऑफ अ ज्ञान दर्शन बेस्ड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशन, तो वो आपको इन्फॉर्म कर सकती हैं और आप जो है यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे टू द ज्ञान दर्शन पेज ऑफ इग्नो, और यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और उसी तरीके से ज्ञान धारा का भी है कि ज्ञान धारा जो IRC हमारा इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग पार्ट है, सो व्हेनेवर मैडम विल बी कंडक्टिंग इन IRC यू कैन एक्सेस द साइट फ्रॉम हियर, और यू कैन लिसन टू मैम एंड यू कैन इंटरेक्ट ऑल्सो। इसके अलावा डिस्कशन फोरम है। I can very well understand कि WhatsApp के टाइम पे this kind of a discussion forum seems quite age old technology, but let me tell you that most of the international universities उनका जो मॉडल ऑनलाइन लर्निंग या ब्लेंडेड लर्निंग का बनता है, it highly relies on the discussion forums। क्योंकि WhatsApp में क्या होता है कि जैसे आज से 2 महीने पहले अगर कोई मैसेज दिया हुआ है तो आप और अगर उसका वर्ड्स भी भूल गए हो तो आप उसे सर्च भी नहीं कर पाओगे इनफैक्ट। बट डिस्कशन फोरम में क्या होता है, वो थ्रेडेड वे में रहता है, सो विच एंड इट इज इजीली सर्चेबल ऑल्सो, तो आप जब भी चाह सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे कि आप कुछ चीजों को एटलीस्ट डिस्कशन फोरम के थ्रू भी इंटरेक्ट करो
और ये डिस्कशन फोरम ईमेल बेस्ड है, यानी कि इफ से मैडम इंट्रोड्यूसेस अ टॉपिक in the discussion forum, you will receive it in your email and you can reply also from your email. So you need not come to this page every time. You can also interact through email और वो यहाँ पे discussion forum में post होता जाएगा. साथ में announcements and calendar of activities है, जैसे if there is some last date for assignment submission or maybe web counseling sessions or some kind of a Gyandhara teleconferencing sessions are being organized. So in the announcement session you will find everything. या अगर आपके examinations होने हैं, evaluation, जो भी चीजें होनी है वो सारा आपको announcement section में मिल जाएगा. So students basically ये जो पूरा portal है इसका purpose ही इतना है कि for your study purpose, for learning purpose and आपके जो भी assignments है, जो भी चीजों के लिए आपको एक जगह पे सारी चीजें मिल जा रही हैं. और जो होम पेज है, होम पेज पे यहाँ पे आप डायरेक्ट भी मेन जो लिंक्स है उन पे जा सकते हैं और यहाँ जो ऊपर मेनू दिया हुआ है इनके थ्रू भी जा सकते हैं. तो आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत, जो लोग भी देखा है उनको थोड़ा और शायद समझ में आ गया होगा, और जो नहीं देख पाए थे वो अब इसके बाद देख पाएंगे और ये जान पाएंगे कि हम किस तरीके से अपनी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं. अब अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम फेस की है आपने, या आपके कोई क्वेश्चंस है, या आप कोई मॉडिफिकेशन भी चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं. और अभी हम लोग कुछ दिनों में आपको एक बेसिक क्वेश्चनर भेजेंगे एंड वी एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू फिल इट एंड सेंड टू अस, बिकॉज इफ देयर इज एनी इम्प्रूवमेंट विच यू वांट और एनीथिंग विच यू वांट कि हम उसमें फैसिलिटी दे या उसको फर्दर इम्प्रूव करें, तो सर्टेनली फॉर योर बेटर लर्निंग एंड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन वी आर रेडी टू डू दैट. तो मैडम मैं यही अभी खत्म करती हूँ. जी जी ठीक. थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी, बहुत अच्छे से आपने बता दिया है पोर्टल के हर एक पेज के बारे में. एंड मुझे लगता है कि यू पीपल दोज हु हैव ऑलरेडी सीन द पोर्टल, सब लोगों को रिकन्फर्म हो गया होगा कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है. देवजीत कुछ कहना चाहते हैं? देवजीत आप प्लीज मैसेज कर दीजिए. आपका वीडियो अच्छे से नहीं आ रहा, मैसेज कर दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज. हाँ जी. देखिए आप लोगों ने, सब लोगों ने जैसे आज रेस्पॉन्ड किया है, यही रिस्पॉन्स आपका अगर रोज हर बार रहेगा तो मेरा भी उत्साह बना रहेगा. बिकॉज मेरे सामने तो कोई स्टूडेंट नहीं है, आप लोग सब होंगे तो हमें भी उत्साह मिलेगा सिखाने का, कराने का. और मे भी अगर आप लोगों ने अच्छा सीख लिया तो कोर्स से बाहर का भी एडवांस कुछ हम लोग कर सकते हैं. लेकिन अगर आप मीटिंग में नहीं आएंगे या क्लास इस वीकेंड क्लासेस में नहीं आएंगे तो कुछ मेरा भी उत्साह कम हो जाता है. तो मुझे लगता है कि वहां पर पढ़ा तो है वीडियो, लोग सीख लेंगे अगर इच्छा होगी तो प्लीज ऐसे वो कूल एक वातावरण में मत जाइए. हमसे आप वीकेंड में मिलिए, कोशिश कीजिए कितना क्लास करने का, इंटरेक्ट करने का, क्योंकि व्हाट्सएप है, आई नो दैट व्हाट्सएप है या डिस्कशन फोरम है, इवन देन इंटरेक्शन इज वेरी, वन टू वन इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिस्टेंस लर्निंग में सबसे मुश्किल होती है. तो मुझे मालूम है कि डिस्टेंस लर्निंग में स्टूडेंट की मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन स्टूडेंट अगर टीचर को मोटिवेट कर दे सिखाने के लिए तो वो स्टूडेंट को ही लाभ देता है बाद में. तो इसलिए आप भी मुझे मोटिवेटेड रखिए और मैं भी मोटिवेटेड रखना चाहूंगी आप सबको. और प्लीज आप वीकेंड क्लासेस अटेंड कीजिए और जितना लाभ उठा सकते हैं इस कोर्स का. अब सिर्फ 3 ही तो महीने रह गए हैं, ज्यादा समय नहीं है. मेरे लिए भी बहुत रशिंग हो जाएगा, हर एक चीज मुझे जल्दी जल्दी करानी पड़ेगी. लेकिन एक आपको सहूलियत है कि आपके पास में पूरा वीडियो मटेरियल है जिसको आप अपने समय पे सीख सकते हैं. और जब भी काउंसलिंग होगा उस वक्त आप मुझे
सुनाइए उस चीज को, और सुना के आप अपना कंफर्मेशन कर सकते हैं कि वेदर यू हैव लर्न इट प्रॉपरली और नॉट। तो ये आपके पास मटेरियल पड़ा है, इसके लिए तो ये आप लोगों को लाभ बहुत है। शर्मिला, आप कुछ कहना चाहेंगी? कहाँ गई शर्मिला? क्योंकि शर्मिला जी जो है वो रेगुलर बहुत व्हाट्सएप में मैसेजेस भेज रही हैं, लेकिन शर्मिला जी शर्मिला जी नहीं है टेक्स्ट में तो हाँ, अभी शर्मिला जी, हाँ मुझे लग रहा है उनको कोई आई विल रिमेम्बर। इसका क्या मतलब हुआ मुझे नहीं समझ में आया। जी मैम, इन्होंने लिखा लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैरा। मैम एक्चुअली ना उन्होंने पूछा कि मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि ध्यान दर्शन कहाँ से जाना है, तो उसने लिखा कि लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैरा पढ़ लीजिए तो यू विल गेट द लिंक कि कैसे करना है। जी जी जी, अच्छा, तो ठीक है। तो और कुछ कहना चाहते हैं? म्यूट है आप मैडम। ऑल्सो कमलेश जी इज हियर। ठीक है, कांट वी जूम इन मैडम? जूम कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि गूगल मीट जो है ऑफिशियल है, इसके चक्कर में हम लोग जूम नहीं कर पा रहे हैं। यस, सो ऐसा मैम हाँ बोलिए। मैं विकास अटल। हाँ मैंने CPA THA किया है, अभी वर्तमान में मैं कर रहा हूँ जो डॉक्टर भारद्वाज जी सर ने, तो वो जूम पे करवाते हैं। इससे अच्छा होता है क्योंकि जूम पे डाटा कम खर्च होता है, और जो हमारी नेटवर्क क्वालिटी या देखे तो सॉफ्टवेयर भी उसका इससे कहीं अच्छा होता है। तो हमारे जो कई दोस्त जो आसाम से हैं या जहाँ नेटवर्क की, तो वहाँ हम जूम पे करके आसान हो सकता है। जी अटल जी, आपका सजेशन मतलब लिया है। अभी जो सेशंस हो रहे थे, आपको भी पता है कोविड के टाइम पे काफी एग्जिजेंसी थी, सो हमारा मेन पर्पस ये था कि हम कैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ पहुंच के और उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन और सारी प्रोग्राम्स करा सके। बट एज ऑफ नाउ तो हम लोग जूम के बदले ये गूगल मीट यूज करेंगे, बिकॉज दिस फ्रॉम इग्नोज ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। और ऐसा नहीं है कि इसमें डेटा पैक जो है ज्यादा खर्चा होता है या क्या होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप इसको मेटिकुलसली या जुडिशियसली यूज करेंगे तो आपका डेटा पैक खर्च नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपकी को बोलना नहीं है, आपकी क्लास चल रही है, तो आप अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं, और इन केस अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा डेटा कम है तो आप सामने वाले का ओनली ऑडियो ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब आपको बोलना हो तब आप अपना वीडियो ऑन करके बोल सकते हैं। तो आपका सजेशन हमने नोट कर लिया है, बट सर्टेनली एज ऑफ नाउ तो हम गूगल मीट ही यूज कर रहे हैं। Ma'am, I have some comment here. I have used Zoom for music classes especially. It is not a very great connectivity app for singing, especially when we sing the high pitch. High notes are never audible for the students. So this is my personal feedback for Zoom call. And like you rightly said, there is nothing like Google Hangouts take more data. Zoom also takes more data. So this platform is very clear. Yes. Akash ji, this is my feedback this is the comparison that I've had. Actually क्या है कि इन सब सॉफ्टवेयर से क्योंकि हम लोग ज्यादा वाकिफ नहीं होते हैं,
तो एक बार किसी चीज से हम लोग यूज टू हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसी में कंफर्टेबल हो गए हैं तो हम उसी पे करें। जैसे मैं गूगल मीट में इससे पहले मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था तो मैं जूम ही कर रही थी, लेकिन ये तो बाय कोर्ट ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि हम लोग जो है कुछ खास सॉफ्टवेयर्स अब से यूज नहीं कर सकते, तो जितना कम हो सकता है उतना कम हम जूम यूज करेंगे। गूगल मीट में ही हमें काम करना पड़ेगा इस वक्त। ठीक है ना? और बताइए। हाँ यस मैम। हाँ, तो आपने थिएटर करते करते म्यूजिक क्यों चूज किया? ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं नॉर्थ यानी मैं राजस्थान से हूँ, तो यहाँ पे काफी शास्त्रीय संगीत है, जैसा कि क्लासिकल म्यूजिक काफी होता है हमारे यहाँ जवाहर कला के अंदर में। तो मैं जाता था तो वहाँ काफी कलाकार आते थे और मैं देखता भी मिलता भी था। जैसे असम से बिहू डांस या जैसे तमिलनाडु से भरतनाट्यम वगैरह ये डांस होते थे, म्यूजिक फोरम हुई हो या कोई भी बड़े कलाकार जैसे अभी जसराज जी है नहीं हमारे, लेकिन और भी कई जो क्लासिकल करते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं मैं थिएटर में जाऊं। अगर हम अगर हम इस तरह से इसे देखें कि हमारे भारतीय थिएटर यानी इंडियन थिएटर में देखें तो म्यूजिक का भी प्रयोग होता है। मैंने देखा है जो अगर भारतेंदु या गिरीश कर्नाड या किसी भी कि किसी भी किताब देखे या किसी का भी नाटक ले या ड्रामा ले तो उसमें म्यूजिक का प्रयोग होता है, डांस का प्रयोग होता है। तो अगर हमें एक अच्छा थिएटर कलाकार बनाया है तो हमें म्यूजिक भी और डांस भी आना चाहिए, साथ में उस थिएटर को अच्छे से समझना चाहिए। जी ठीक, अच्छी बात है, थैंक यू। तो ज्योत्सना जी मेरे ख्याल से आज का ये हम लोग फिनिश कर सकते हैं यहीं पर हम लोग। जी मैम, और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपने जो आपको पोर्टल दिया हुआ है उस पे आप जरूर जाइए, जैसे सचिन जी ने किया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने पहले से ही वीडियो भी देखे हैं। उससे क्या होगा कि जब आप मटेरियल के साथ साथ वीडियो को भी देखोगे, पढ़ोगे, तो जब आपके एक्चुअल फॉर्मल वेब काउंसलिंग सेशन शुरू होंगे हेलो सो यू मैम। विल। हाँ मैं कुछ बोलूं? जी अटल जी बिल्कुल बोलिए। हाँ मैम, एक एक कारण ये भी रहा कि मेरा इसमें शामिल होने का, क्योंकि मैं लगातार कई बार इग्नू की वेबसाइट पर जाता हूँ तो मैंने डॉक्टर काफी लोगों के जो यहाँ पे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होते हैं किसी भी स्टडीज के या ह्यूमैनिटीज हो या कोई सी भी हो, साइंस हो, तो मैंने देखा तो लगभग सबका एक्सपीरियंस देखा था। आपका सीवी यानी करिकुलम विट्टे मैंने डॉक्टर मल्लिका जी मैडम का देखा तो काफी मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने अपने फील्ड में काफी काम किया है। जैसे इन्हें ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग न्यू दिल्ली, इन काफी अवार्ड जैसे यंग टैलेंट अवार्ड, सुरमानी या नाथ वर्मा, शिरोमणि संगीत भूषण, ऐसे काफी अवार्ड मिले। और भी कई जो इनके रिसर्च पेपर और इनकी जो स्टडी थी, चाहे वो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से हो, उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी न्यू दिल्ली, हमारी जो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी है चाहे दिल्ली तो या JNU, MU, जामिया वगैरह, IITs, तो मुझे अच्छा लगा कि इनका अनुभव और फील्ड में देखे तो काफी ज्यादा था। तो मुझे लगा कि हम अगर इनसे हिंदुस्तानी म्यूजिक सीखेंगे तो हम उस लेवल तक जा पाएंगे जिस लेवल तक हमें जाना चाहिए, या हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा और फील्ड में भी। या इस फील्ड में जैसे म्यूजिक में कई चीजें होती है, स्पिरिचुअल म्यूजिक या रस वगैरह, भक्ति रस जो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसमें ले लेते हैं। फिर मैंने फाइनली ले लिया। जी थैंक यू। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पोर्टल्स को एक्सेस करें। मैडम ने जो पहले वेब काउंसलिंग सेशंस लिए हुए हैं उनके वीडियो को देखें, मटेरियल को पढ़ें, असाइनमेंट्स को अटेंड करें
और जैसे ही फिर हमारी प्रोफेशनल ये वेब काउंसलिंग जब ऑफिशियली शुरू हो जाएगा तो आपके सेशंस का जो है मैडम कंडक्ट करेंगी वेब काउंसलिंग, और हम आपको एक क्वेश्चनर भी भेजेंगे, उसको भर के भेजेगा, उससे हमें और हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे फिर। जी ठीक है, नमस्कार सभी को। नमस्कार। बाय। नमस्कार। Bye, take care. Thank you so बाय much. बाय Thank you so much. Bye, Jyotsna ma'am. बाय बाय बाय। थैंक यू you. ज्योत्सना। Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू।